Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 3 subject code BP602T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, dear learners, today we are going to discuss about the first antibiotic which is named as a penicillin. So, let us explore the pharmacology of penicillin antibiotic. So, penicillin antibiotic was first discovered by a very renowned scientist who have a very large contribution in the biological sciences, and the name of that scientist is Alexander Fleming. Alexander Fleming discovered this antibiotic serendipitously. So, what happened? He is a Scottish biologist and the pharmacologist, and during his various experiments to search for a new molecule which is helpful to cure the microbial infections, he discovered penicillin. Because the World War I taken a lot of lives due to the infections, due to the microbial wounds and the wounds which causes the microbial infection. So, Dr. Fleming, who is the professor of bacteriology at the University of London in 1928, accidentally discovered the penicillin during the studying the bacterial property of the Staphylococcus. So, what he had done, he isolated a fungus which is known as Penicillium, especially Penicillium notatum, and he isolated a chemical whose name was given at that moment as penicillin, and this particular penicillin has a very good activity against the gram positive bacilli. So, the official date of birth for the penicillin is 7th March 1929. So, this is a picture which is depicting that the World War I taken a lot of lives, I already told you. So, in World War II, due to the availability of penicillin and another antimicrobial agents, the casualties due to the wounds, due to the microbial infections are very less. So, you can say that penicillin is a miracle drug at that moment. Penicillin was also said to treat the diphtheria, gangrene, pneumonia, syphilis and tuberculosis. So, you can say that penicillin is the first antibiotic which is used clinically to treat the microbial infection. अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझना होगा कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक था, इट इज़ नॉट एंटी माइक्रोबियल एजेंट, हाँ, क्योंकि ये सबसे पहले हमें बायोलॉजिकल सोर्स से मिला था, ठीक है। अगर हम सल्फोनामाइड की बात करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया, तो सल्फोनामाइड इज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड by the dye, organometallic dye. Okay. So, Fleming received the Nobel Prize in 1945 for this discovery, and he is very renowned person at that moment. Now, let us discuss the classification of penicillin. So, penicillin is classified into two parts, the natural penicillins and the semi-synthetic penicillin. So, what is the reason behind this classification, why they are divided into two parts, natural and the semi-synthetic? So, reason is that because at that moment generally penicillin was isolated from the Penicillium notatum, and the yield was very less at that moment, because Penicillium notatum is a fungus and the yield was very less and the demand is very high. So, for that what they can done by changing a species which is known as the Penicillium chrysogenum, which having a very high level of penicillin content. Okay. So, let us start with the natural one. पेनिसिलिन को हम कह सकते हैं डिवाइड करने के, क्लासिफाई करने के लिए दो रीजंस क्या हैं। एक तो उसकी एसिड लाइबिलिटी, मतलब कि एसिड के प्रेजेंस में पेनिसिलिन जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और कुछ पेनिसिलिन्स हैं वो स्टेबल रहते हैं. सो वी आर फर्स्टली दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑन विच वी आर क्लासिफाइंग द पेनिसिलिन. सो एसिड लेबाइल की बात कर लेते हैं. लेबाइल का मतलब जो कि एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाए, टूट जाए. ठीक है, तो इसमें अगर एग्जांपल बात करें तो दो आ जाते हैं. पेनिसिलिन जी, जिसको हम बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे बेंजाइल लगा होता है. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज द प्रोकेन पेनिसिलिन जी. ठीक है, तो इसमें एक प्रोकेन लगा हुआ है. एसिड रेजिस्टेंट जो स्टेबल है, जो एसिड के प्रेजेंस में नहीं टूटेगा, उसका नाम है पेनिसिलिन वी, जिसको हम कहते हैं फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन. इट इज़ अ वेरी गुड ड्रग.
ठीक है, बिकॉज इसको आप ओरल रूट से ले सकते हो, बाकी इन दोनों को आप पेरेंटल रूट से या फिर डिपोर्ट फॉर्मेशन के थ्रू ही ले सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेमी-सिंथेटिक पाथ। सो हियर वी हैव अ 3 क्लासेस, द पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट, जिसको हम आगे बीटा लैक्टमेज के नाम से भी जानेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ मिस कर दी, बिकॉज बीटा लैक्टमेज, पेनिसिलिन जो है वो एक बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक है, और बीटा लैक्टमेज में एक बड़ी क्लास है जिसमें और भी दूसरे एंटीबायोटिक्स आते हैं, जैसे सिफेलोस्पोरिन या फिर मोनोबैक्टम्स या फिर कार्बापिनम्स, ठीक है। तो उसको भी हम आगे चलकर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द व्हाट, पेनिसिलिन, ठीक है। तो हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे ड्रग की जो कि बीटा लैक्टमेज को रजिस्ट करे, जो कि उससे ना टूटे, ठीक है। सेकेंड क्लास इज बीटा लैक्टमेज इनिबिटर, जो उसको इनिबिट कर दे, एंड द थर्ड वन इज द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, बिकॉज वी नीड सम एंटीबायोटिक्स विच हैव अ वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ, दैट इज अराउंड 24 to 36 आवर्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। पेनिसिलिन जनरली आइसोलेट हुआ था पेनिसिलिन नोटाटम से, बट यील्ड बहुत कम होती थी, दैट्स वाई वी स्विच टू द क्राइसोजीनम, ठीक है। सेमी सिंथेटिक का क्लासिफिकेशन थोड़ा ब्रॉड है, इसलिए मैंने इसको अगली स्लाइड पे कवर अप किया है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट में ड्रग आएगा मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करेंगे तो एग्जांपल्स हो जाएंगे अमीनो एम्पिसिलिन, जिसका एग्जांपल है एम्पिसिलिन, बैकम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें तो कार्बोक्सी पेनिसिलिन है, इसमें कार्बोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसका ना जो एग्जांपल है दैट इज द कार्बेंसिलिन। यूरिडोपेनिसिलिन जो है, इट इज द नेक्स्ट वन इन विच द पिप्रासिलिन एंड द मेजोलोसिलिन इज द एग्जांपल, ठीक है। बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर इसलिए पढ़ना जरूरी है बिकॉज आगे चलकर बीटा लैक्टेमेज की वजह से हमारी जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, वो क्या होगी, डिग्रेड होगी। तो फॉर दैट वी नीड टू इनहिबिट द बीटा लैक्टेमेज, एंड फॉर दैट वी नीड सम स्पेसिफिक एजेंट विच डजंट हैव एनी antibacterial property, but they have a very good beta lactamase property, inhibition property. So what are the examples? Clavulanic acid, salbactam and the tazobactam, ठीक है। So let's move to the structure of penicillin, ठीक है। ये बहुत जरूरी है बिकॉज अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको पेनिसिलिन की आधी फार्माकोलॉजी जो है वो क्लियर हो जाएगी। सो पेनिसिलिन बना होता है 2 रिंग से। द फर्स्ट रिंग इज नोन एज रिंग ए, थायाजोलिडिन रिंग, ठीक है, और रिंग बी जो है इसको हम कह देते हैं बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। अब ए और बी तो आपने समझ लिया। नाउ दिस होल स्ट्रक्चर विच कंप्राइजेज ए एंड बी इज नोन एज 6 अमीनो पेनिसिलिनिक acid, and this is responsible for the antimicrobial property of the penicillin, ठीक है। So remember it, 6 amino penicillinic acid is the responsible factor for the antimicrobial or antibacterial activity, ठीक है। Now this bond is known as what, amide bond, ठीक है। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए फंगस, बैक्टीरिया के अंदर से केमिकल निकलता है, और उस केमिकल का नाम होता है, सॉरी, फंगस में से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है एमाइडेज, और एमाइडेज जो है उसका काम है क्या, इस बॉन्ड को तोड़ना, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, आपका 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड जो है वो बन जाएगा, आपका ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो आपके पास बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। लेकिन अब यहां पर जो साइट 2 है, दिस वन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। This site is known as the site on which the beta lactamase attack, ठीक है ना। यहाँ बीटा लैक्टमेज जो है वो तोड़ता है इसको, ठीक है। और बीटा लैक्टमेज अगर इसको तोड़ देगा तो यहाँ पर जो मेटाबोलाइट बनेगा उसका नाम होगा पेनिसिलोनिक एसिड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जीज, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइड इफेक्ट ऑफ द पेनिसिलिन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये साइट नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये साइट टूटी तो काम आपका बिगड़ जाएगा, आपका एंटी माइक्रोबियल पेनिसिलिन जो है वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। सो वी नीड टू प्रिवेंट द क्लीवेज ऑफ दिस पर्टिकुलर साइट, ओके। और यहाँ अगर ये क्लीव हो गया तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो मैंने आपको बता दिया, उसका नाम होगा पेनिसिलोनिक एसिड, and it is responsible for the hypersensitivity which is caused generally due to the what, penicillin, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे अच्छे से। Now let's move to the next part. Kinetics की अगर हम बात करते हैं तो it is a water soluble वाटर soluble इसलिए है
और मतलब अगर आप कहो वाटर सॉल्युबल, तो वाटर सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि ये इजीली सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। एसिड लेबाइल है, थर्मोलेबाइल है, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। मैं ये नेचुरल पेनिसिलिन की बात कर रहा हूँ, स्पेशली कौन से, पेनिसिलिन जी की, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको प्लीज ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं पेनिसिलिन जी की, ठीक है, ओके। थर्मोलेबाइल भी है, कभी भी पेनिसिलिन का सॉल्यूशन बना के नहीं रखा जाता, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फ्रेशली बनाते हैं और तुरंत ही उसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थर्मोलेबाइल भी है, ज़्यादा देर रखा तो ये ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। एडीएमए की बात करें तो जनरली ये इसका जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज बाय द इंट्रामस्कुलर, ये डिपो फॉर्मेशन करता है, हाथ में दिया मतलब इंट्रामस्कुलर रीजन्स दिया जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन इसका बहुत अच्छा है, रीनल एक्सक्रीशन होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होता है, ठीक है, यानी किडनी से ये आराम से बाहर निकल जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है इसमें, अगर प्रोबेंसिड दे दिया हमने पेनिसिलिन के साथ तो थोड़ी सी कहानी बिगड़ जाएगी। अब प्रोबेंसिड क्या है, इट इज़ एंटी गाउट ड्रग, यूरोकोसोरिक ड्रग है, ठीक है। अब ये करता क्या है प्रोबेंसिड, तो प्रोबेंसिड जो है वो जो ट्यूबुलर सिक्रीशन था, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, और जैसे ही वो ब्लॉक करेगा जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है पेनिसिलिन का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब लॉन्गर प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा तो क्या होने की चांसेस ज्यादा हैं, टॉक्सिसिटी होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है। सो आप ध्यान रखिए, पेनिसिलिन इज नेवर यूज्ड विद द प्रोबेंसिड ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, आप जानते होंगे। तो ग्राम पॉजिटिव का जो लेयर होता है दैट इज मेनली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, और जो ग्राम, और ये थिक होता है ग्राम पॉजिटिव, हाँ। तो अगर हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जी पॉजिटिव और जी नेगेटिव, तो यहाँ पर थिक लेयर होगा किसका, पेप्टिडोग्लाइकेन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लेयर होगी पेप्टिडोग्लाइकेन की दैट इज वेरी थिन, ठीक है। अब ये बहुत पतली लेयर होगी, तो यही इस मैकेनिज्म को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। होता क्या है, पेनिसिलिन जनरली सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो जनरली सेल वॉल जो है, स्पेशली मैं आई एम टॉकिंग बिकॉज पेनिसिलिन इज मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव, नॉट दे आर वेरी वीक एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव, ठीक है ना। तो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए क्योंकि ये पेप्टिडोग्लाइकेन का थिक लेयर से बना हुआ है, ठीक है। अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, तो इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड्स एंड पेप्टाइड। तो पेप्टाइड जो है वो और पॉलीसैकेराइड जिसका नाम ग्लाइकेन है, पैरेलल ग्लाइकेन्स हैं, उनसे बना हुआ है। ग्लाइकेन कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट ग्लाइकेन इज द एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जिसको हम शॉर्ट में नाग कहते हैं, NAG नाग, एंड द सेकंड वन विच इज नोन एज एन एसिटाइल मुरामिक एसिड विच इज नोन एज नाम, ठीक है। अब नाग और नाम का आप देखो तो पैरेलल चेन बना हुआ है, ठीक है, ऐसे आप देखो, हाँ, ठीक है। और ये पैरेलल चेन को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड होता है दैट इज नोन एज व्हाट, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो दिस बॉन्ड इज used to join the what, these parallel chains of the glycan, ठीक है। Now this process is known as the transpeptidation, and for this there is a specific protein which is encoding these property is known as penicillin binding protein। तो होता क्या है, हमारा पेनिसिलिन इसी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को टारगेट करता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन को टारगेट करता है और इसको तोड़ देगा। अब जैसे ही घर की दीवारें टूटी, छत जो होगी वो अपने आप ही गिर जाएगी। इसको सिंपल से समझ लेते हैं, बैक्टीरिया का खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। वो ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट नहीं कर सकता, यानी कि बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर, अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डिफरेंस है उसको वो रेगुलेट नहीं कर सकता है। बाहर कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर और अंदर ज़्यादा होगा, ये बैलेंस रहेगा। फॉर दैट PVP इज देयर। अब जैसे ही हम इस ट्रांसपेप्टाइडेशन को तोड़ते हैं, इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं, उसी तरीके से ये डिस्टॉर्शन हो जाता है, आपके जो लेयर थी, ये जो बॉन्डिंग आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। मतलब ये बॉन्ड जो यहाँ पर है, ठीक है, इसकी बॉन्डिंग होती है डी एलेनिन एल लाइसिन, ठीक है ना, इससे बना होता है ये, ठीक है, डी एला और एल लाइसिन से। तो ये जो बॉन्डिंग है डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब आगे पीछे हो जाएगा, और बॉन्ड जैसे ही आगे पीछे होगा, दीवार जो होगी जो पेप्टिडोग्लाइकेन के लेयर पे वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड दिस इज द रीजन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट विल चेंज, ठीक है। यानी कि जो बाहर का फ्लूइड है वो अंदर आने लगेगा, फ्लूइड बाहर का जब अंदर आने लगेगा तो बैक्टीरियल सेल स्वेल करने लग जाएगा, फूल जाएगा, और जब ज़्यादा स्वेल कर जाएगा तो उसकी बस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अब
एक तो बैक्टीरिया का क्या हो गया, बस्ट आउट हो गया, वो फट गया, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि एंजाइम्स निकलेंगे, जैसे लाइसिन हो गया या मुरेइन हो गया। ये जो एंजाइम्स निकलेंगे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ दीज बैक्टीरियल व्हाट द पार्ट्स, ठीक है ना, बैक्टीरियल पार्ट्स को ये डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो द ऑटोलाइसिन रिलीज्ड फ्रॉम द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विल डाइजेस्ट द रेमिनेंट ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, नाउ एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो मैंने पहले बोला था आपसे कि ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट में बहुत इफेक्टिव है, बट ग्राम नेगेटिव में इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड है। ग्राम पॉजिटिव में ये स्ट्रेप्टोकोकस पे बहुत इफेक्टिव है, न्यूमोकोकस पे, इसके अलावा बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लोस्ट्रीडियम डायप्थेरी, क्लोस्ट्रीडिया, लिस्टीरिया स्पीसीज के अगेंस्ट में भी इसकी एक्टिविटी जो है दैट इज वेरी गुड। बट जब हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये गोनोकोकस और मेनिंजोकोकस के अगेंस्ट में भी इसकी एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। एक्टिनोमाइसीज में भी इसकी एक्टिविटी थोड़ी बहुत है, एंड स्पायरोकिट्स जैसे ट्रेपोनेमा पैलिडम, इसके अगेंस्ट में भी इसकी एक्टिविटी जो है दैट इज लिटिल बिट सीन, ठीक है। अब क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा यूज होता है इन्फेक्शंस में, सो यहाँ पर जो उसका यूज है दैट इज वेरी इफेक्टिव इन स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन सच एज फेरेंजाइटिस, आपके फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, ओटाइटिस मीडिया, आपके कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, स्कारलेट फीवर अलॉन्ग विद द सोर थ्रॉट, ठीक है, रूमेटिक फीवर। अब URTI हो गया और फीवर भी साथ में है, तो उसकी वजह से आपने उसको रूमेटिक फीवर बोल दिया। पैरेलल में सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ठीक है ना। अब आपके एंडोकार्डियम में ब्लड सर्कुलेशन में क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया और उसने आपके एंडोकार्डियम को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, तो दिस इज नोन एज व्हाट, एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। इसके अलावा दिस इज वेरी इफेक्टिव इन द न्यूमोकोकल, ठीक है। न्यूमोकोकल जो न्यूमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है, उसमें भी ये स्पेसिफिक है लोबर न्यूमोनिया। व्हाट इज लोबर, क्योंकि लंग्स दो होते हैं और उनके छोटे छोटे लोब्स बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये निमोनिया जो है पर्टिकुलर कुछ लोब्स का होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, लोबर निमोनिया। इसके अलावा यह मेनिंजाइटिस में यूज किया जाता है। इसके अलावा ये ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम जो मैंने कल आपको बताया था, जो कि न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलता है, उसमें भी ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है। एंड समटाइम्स इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर द सिफालिस, बट ध्यान रखिएगा कुछ लोगों में एलर्जी होती है सिफालिस की, तो वहाँ हम टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं। सो व्हाट आर द फाइनल यूजेस, डायप्थीरिया जो कि एक URTI है, जो कि आपका आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसमें फीवर भी होता है। टेटनस, ये मसल क्रैम्पिंग होती है जब आपको इन्फेक्शन हो जाए टेटानी की वजह से। एंथ्रैक्स, एक्टिनोमाइकोसिस, रैट बाइट फीवर, एंड वी कैन ऑल्सो यूज दिस पेनिसिलिन इन रूमेटिक फीवर, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एंड एक ग्रेनुलोसाइटोसिस, जहां पर आपको आप कह सकते हो न्यूट्रोपीनिया या ग्रेनुलोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जनरल साइड इफेक्ट्स की हम बात नहीं करेंगे, इसके एडवर्स इवेंट्स की बात नहीं इफेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्पेसिफिक, ठीक है। तो अगर आप ये इमेज देख रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक स्किन एलर्जी हो रखी है, एंड दिस इज ड्यू टू द पेनिसिलिन, ठीक है। और अगर आपने अभी याद रखा हो तो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, ये एलर्जी जनरली देखने को मिलती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पेनिसिलोनिक एसिड, ठीक है। पेनिसिलोनिक एसिड की वजह से ये प्रॉब्लम जनरली देखने को मिलता है। सो जनरल रैसेस, इचिंग, अट्रिकेरिया, फीवर तो देखने को मिलेगा, बट साथ में विजिंग, मतलब आप जब सांस लोगे रात में आपको, या वो जब स्टेथोस्कोप डॉक्टर लगाता है तो घर घर की आवाज आने लगेगी, ठीक है। तो दैट इज द प्रोसेस नोन एज विजिंग। इडिमा, सीरम सिकनेस, एक्सोफोलेटिव डर्मेटाइटिस, स्किन निकलने लगेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कभी कभी, इट इज वेरी रेयर, बट एनाफाइलेक्टिक शॉक भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो सुपर इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है पेनिसिलिन जी के साथ, जैसे इट इज वेरी रेयर, ठीक है। बट हाँ, सुपर इन्फेक्शन मतलब कि एक इन्फेक्शन को ट्रीट करते करते हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज्ड होती है और दूसरी इम्यूनिटी जो होती है वो सुपरफिशियल हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा हमको कभी कभी बाउल डिस्ट्रेस भी देखने को मिलता है, माइक्रोफ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। जेरिस हेक्सिमर reaction is very specific to the penicillin that includes the symptom like shivering, fever, myglia, muscle pain, ठीक है, exertion of lesions, vascular collapse, and generally these
reactions are seen in the cephalic patients, ठीक है, the people who are suffering from the syphilis and having the treatment of penicillin, ठीक है. So यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है, and it is due to the release of the spirochetal प्रोडक्शन, ठीक है ना, स्पायरोकीटल लाइटिक प्रोडक्ट निकलने लगते हैं जो कि हमारे को पेनिसिलिनिक एसिड ज़्यादा बनाने लग जाते हैं, ठीक है. अब वाई सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत पड़ी सेमी सिंथेटिक की, तो उसका रीज़न क्या था, एक तो ओरल एफिकेसी नहीं थी हमारे पास अच्छी, ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था. इसके अलावा बीटा लैक्टमेज जिसको हम पेनिसिलिनेज भी कहते हैं उससे ससेप्टिबिलिटी थी, ये गैस्ट्रिक एसिड में स्टेबल नहीं था, जल्दी टूट जा रहा था. इसके अलावा नैरो स्पेक्ट्रम था इसका, ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा था. तो इसलिए हमको सेमी सिंथेटिक की तरफ शिफ्ट होना पड़ा. सो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन हैविंग डज नॉट हैव दीज टाइप ऑफ ड्रॉबैक्स, ठीक है. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन. लेट्स एक्सप्लोर द कंपैरेटिव चार्ट, ठीक है. सो हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स ले लिया, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और बेकेम्पिसिलिन. तीनों जो हैं वो एसिड स्टेबल हैं, ठीक है. बट अगर हम बात करें तो एम्पिसिलिन का ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा नहीं है, बट एमॉक्सिसिलिन का और बेकेम्पिसिलिन का ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है. फूड इंटरफेरेंस देखने को मिलता है एम्पिसिलिन के साथ, बट इसके साथ कोई फूड इंटरप्शन नहीं है, ठीक है. हाफ लाइफ एम्पिसिलिन का थोड़ा कम है, 1 आवर 1 आवर 1 आवर तीनों का, ठीक है. तीनों की तीनों जो हैं they are effective in the what enterococcus, streptococcus viridans and listeria infection, ठीक है. now generally एम्पिसिलिन जो है वो बाइल के रास्ते बाहर निकलता है, ठीक है, और इसी तरीके से एमॉक्सिसिलिन और बेकेम्पिसिलिन भी जो है वो एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है. यूजेस में अगर बात करें तो एम्पिसिलिन जनरली यूज किया जाता है यूटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में. ये यूज किया जाता है, प्रेफर किया जाता है एम्पिसिलिन के ऊपर एमॉक्सिसिलिन को, ठीक है, बिकॉज इसके ओरल स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी है, ठीक है, दैट्स वाई. हाँ, अब हम बात करें तो इसका यूजेस भी सेम है, ठीक है. इसके अलावा एम्पिसिलिन का यूज ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, साइनोसाइटिस और मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिलता है. मेनिंजाइटिस का मतलब हमारे ब्रेन में कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं, उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है ना, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है. इसके अलावा ये गोनेरिया में भी यूज किया जाता है, कॉलिसिस्टाइटिस, सब एक्यूट सैवेज जिसको कहते हैं, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्टाइटिस, और कभी कभी इसको हम एच पाइलोरी के अगेंस्ट में भी यूज करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर जो है ये हमको बचाएंगे किससे, जो प्रॉब्लम हो रही थी. क्या प्रॉब्लम हो रही थी बीटा लैक्टेमेज से, हमारा जो मेटाबोलाइट बन रहा था, इनएक्टिव जो एक कंपाउंड बन रहा था, वो हमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स दे रहा था. तो फॉर दैट वी हैव व्हाट, द क्लेवोनैलिक एसिड, salbactam and the tazobactam. All these 3 are considered as a beta lactamase inhibitor. So let's discuss about the pharmacology, ठीक है. तो क्लेवोनैलिक एसिड जो है ये सबसे पहले आइसोलेट किया गया स्ट्रेप्टोमाइसिस क्लेवुलिजेरस से, ठीक है. इसके अंदर भी बीटा लैक्टम रिंग होता है, बट इट डजंट हैव एनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी. सो प्लीज रिमेंबर इट, ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं रखता है. ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, बीटा लैक्टम से बचाएगा टूटने से पेनिसिलिन को, ठीक है. तो हम बात करें तो ये सारे लैक्टेमेज को टारगेट कर लेता है. जनरली जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा, इसकी बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे ये इसका इफेक्ट जो है वो भी बढ़ता है, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्रोग्रेसिव सुसाइड, ठीक है. ये प्रोग्रेसिव सुसाइड इनहिबिटर की तरह से भी जाना जाता है. अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ इज नियरली 1 आवर, ठीक है, एंड जनरली इट इज एलिमिनेटेड बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है. अब पेनिसिलिन का हाफ लाइफ अगर आप एमॉक्सिसिलिन की बात करें तो वो भी 1 आवर था और इसका भी 1 आवर है. तो हम एक सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. फॉर दैट वी हैव व्हाट, पेनिसिलिन अलॉन्ग एमॉक्सिसिलिन अलॉन्ग विद द क्लेवोनैलिक एसिड, जिसको आप ऑगमेंटिन के नाम से मार्केट में जानते हो. नाउ साल्बैक्टम इज सिमिलर टू द क्लेवोनैलिक एसिड बट इट हैज सम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी. सो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी थोड़ी रखता है. इरिवर्सिबल बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है, यानी कि एक बार अगर इसने बीटा लैक्टेमेज को इनहिबिट कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है. अब इट इज लेस पोटेंट देन क्लेवोनैलिक एसिड बट इट हैज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद द एम्पिसिलिन irrespective of the amoxicillin, ठीक है. सिमिलर टू द साल्बैक्टम अगर हम बात करें, टेजोबैक्टम भी बिल्कुल सेम टू सेम साल्बैक्टम की तरह है एंड इट इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द स्यूडोमोनास ओरिजिनेसा, जो कि बाकी पेनिसिलिन नहीं कर पा रहे थे, और दैट्स व्हाई इट इज कंबाइंड विद द पिप्रासिलिन, ठीक है. एक पेनिसिलिन के साथ उसको कंबाइन किया जाता है एंड दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट द
पोस्ट सर्जरी इश्यूज। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको बता दिया, कोअमोक्सिक्लोव है, यहाँ एम्पिसिलिन के साथ है और यहाँ पिप्रासिलिन के साथ है। यूजेस की बात कर ले तो ये जनरली यूज किया जाता है स्किन, इंट्रा एब्डोमिनल, गायनेकोलॉजिकल, यूटीआई, बाइल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। डोजेज यहाँ पर स्टैंडर्ड डोजेज दिए हुए हैं। साइड इफेक्ट थोड़े कम है, इनसे फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाकी साल्बैक्टम जो है दैट इज़ वेरी इफेक्टिव इन द पीपीएनजी यानी कि निजेरिया गोनेरी, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जो निजेरिया गोनेरी उसमें ये बहुत इफेक्टिवली काम करता है और गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस में भी बहुत इफेक्टिव है। जनरली इसको हम देते हैं बाय पेरेंट्रल रूट और साइड इफेक्ट जो है वो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड द पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। सिफोट्रोक्सन tazobactam जो है दैट इज वेरी इफेक्टिव, समटाइम्स इट इज कंबाइंड विद द सिफोट्रैक्सोन। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड यू कैन से द कॉम्बिनेशन। नाउ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, तो जनरली पेनिसिलिनेज की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या फिर प्लाज्मिड डोनर की वजह से कुछ एक म्यूटेशन कर देंगे प्लाज्मिड जोड़ के और उस पर्टिकुलर साइट पर जहाँ पर एंटीबायोटिक काम कर रहा था उसको चेंज कर देंगे। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो रेजिस्टेंट है पेनिसिलिन से, स्टेफिलोकोकस, एस निमोनी, गोनोकोकस स्पेशली पीएनजी से, स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई, एंड देयर आर सम एंजाइम्स विच आर ब्रेक डाउन द पीएनजी इन द ब्लड सैंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेनिसिलिन। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।